हाँ जी बताओ जी, रेस्ट जुडिकेटर लगेगा नहीं लगेगा, सिंपल बताओ। सेक्शन 5 पे लग जाएगा, सेक्शन 6 पे। रेस्ट जुडिकेटर सेक्शन 5 पे लग जाएगा, सेक्शन 6 पे नहीं लगेगा, सभी का ही है। रवि हाँ सर, कैसे है? तो सेक्शन 5 पे तो हम टाइटल और एंटाइटलमेंट डिसाइड कर रहे हैं, जो कि एक बार डिसाइड हो जाए तो वो दोबारा सूट नहीं डल सकता। पर सेक्शन 6 में सवाल फिर गलत समझा आपने, सेक्शन 5 और 6 के ही सूट थोड़ी ना होते हैं, सेक्शन 5 का सूट होके वो डिसाइड होके सेक्शन 34 का डल गया तो ये तो करवा दिया था मैंने, ये तो लिखवा चुका हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं बिना सिंग वाला हूं क्या? ये एस्केप कर रहे हो, आप एस्केप करते हो बहुत ज्यादा, एस्केपिज्म बोलते हैं इसको, जिम्मेदारी आती ही एस्केप करना। लिखो, नहीं देखा एज यूजुअल, लिखो, डिक्टेशन करो इसकी। उसमें भी लिखा हुआ है, इसमें कमेंट्री डिक्लेरेशन टाइटल और इंटरेस्ट के बाद सूट बाहर नहीं होगा, सब्सिक्वेंट सूट अगर हम डालते हैं। कहाँ किसी कमेंट्री में लिखा है? आगे मतलब अच्छा दिखाओ कहाँ, बैठ जाओ। Subsequent suit filed for एग्जांपल भी title and trust not filed by the suit. जैसा है गणेश पत्र, उड़ीसा हाईकोर्ट का ही, इसको नहीं देखना। बताओ, किताब किताब पढ़ना भी फिर बता दिया मैंने, कोचिंग देनी पड़ेगी तुम्हें किताब पढ़नी है ना। लिखो वो क्वेश्चन पे आंसर, कल क्वेश्चन लिखा था उस पे आंसर लिखो। लिखो जी, द बेसिक ऑब्जेक्टिव behind the principle of res judicata is to avoid the multiplicity of the suit, full stop. It bars the trial of such suits or issue of which it was directly and substantially the same with any former suit which had happened between the same parties to the subsequent suit which had been heard and finally decided by such former court being competent. Full stop. CPC
further expand the scope of res judicata through explanation 4 and 5. By further including the matter which might and ought to have been made a ground or cause of action. लिखो नेक्स्ट पैरा बनाओ. The basic objective of SRA is also to avoid the multiplicity of suit, as there are various sections which specifically bars the subsequent suit in case of dismissal of suit for compensation, damages, etc. फुल स्टॉप लगाओगे etc के बाद. That section 5 SRA does not create any specific remedy. है ना, ये सोचना पड़ेगा. सेक्शन 5 पे अगर आप लगा रहे हो तो मतलब किस भी आप पे लगा रहे हो, क्योंकि सेक्शन 5 तो आपको राइट नहीं दे रहा है कोई सूट फाइल करने का. सेक्शन 5 तो सिंपल ये डिक्लेयर कर रहा है कि वो सीपीसी में जाओ. ठीक है ना, वहां कैसे लगाओगे स्पेसिफिक रेमेडी. रादर it generally creates a rule to deal with cases of recovery of possession based upon title as per the manner suggested by the CPC. लिखो full stop. On the other hand, SRA provided by section 6 a specific relief of recovery of possession of property irrespective of any claim or title to the property either by comma डाल के property के बाद comma either by the plaintiff or
डिफेंडेंट, है ना। सेक्शन 6 का जब मुकदमा होता है तो ना ही प्लेंटिफ ना ही डिफेंडेंट टाइटल लेकर आता है, टाइटल नहीं प्रूव करते। फुल स्टॉप, full stop. The plaintiff shall not raise the issue of title in the suit under section 6, as well as the defendant also will not take the defense of title in that suit. Further, if the issue of title has been raised the court shall not hear on such issue or take evidence on such issue of title. Full stop. However, if the court has in the suit of section 6 heard the issue of title and has decided on that point, then for the purpose of res judicata, such determination shall be called determination of matter in issue, Determination of matter in issue, collaterally and incidentally, but not as directly and substantially, comma. So the application of res judicata shall not apply on subsequent suit. नेक्स्ट पैरा बनाओ. If we read, पैराग्राफ अलग करोगे. If we read section 34 SRA, it specifically bound down the plaintiff to accompany and claim consequential relief
which further directly and substantially ought to be an additional cause of action and further specifically bars any subsequent suit to claim such consequential relief only. Full stop. The Honorable Supreme Court, wide its judgment in a leading case known as State of MP versus Mangeram Sharma, 1998, clearly stated that the suit under Section 5 SRA read with Section 34 SRA लिखी लो 34 SRA is conclusively controlled by Section 11 CPC. And in case plaintiff omits any further relief, principle of res judicata shall apply upon any subsequent suit for asking such substantial consequential relief. इसको पढ़ना, ठीक है ना। इसमें जो आपने जो केस बनाया है, ठीक है जी, उसका भी आंसर है, ठीक है जी। मेरा तो मंतव्य था ही नहीं कि मैं 5 और 6 के बीच में सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने कल ये डिस्कस भी किया था आपको कि 5-6 का नहीं, 5-6 का तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, तो चलो ठीक है, लिखवा दिया मैंने, हालांकि मेरे को जनरेट करना पड़ा। हटा देता हूँ सारा मैं। एक सेकंड, डिलीट हो रहा है। तो एक बार 5 और 6 का डिफरेंस चेक कर लो। लिखो फटाफट 5 और 6 का डिफरेंस लिखो। हेडिंग बना लो, बनाइए। लिखा था घर पे? बेटा थोड़ा सा ठीक लिखा करो, फिर आप ही सुधारोगे ना। यू एग्जैक्ट वी जैसा है, यू बिल्कुल यू जैसा नहीं है। क्या लिखा है? रेगुलर सिविल मिमी डी क्या है? रेमेडी
हाँ ऐसा तो लिखो कि मैं फोटो खींच के उस पर डलवा दूं। वो तो कोई बात नहीं सर, वो तो अरे वो तो बात वही है, बैठ जा। फायदा क्या हुआ फिर लिखने का? मतलब नोट्स ऐसे बनाने समझ ना ले, मेरी विद्या को चोरी ना कर ले। मैं दूसरी लाइन में पहुंचा ही नहीं। रुक जा, लिखो लिखो, 5 और 6 का डिफरेंस बनाओ। बेसिस आप करोगे क्लियर, ठीक है ना? बेसिस आप लिखोगे, सिंपल सिंपल लिख लो। और आज ही होमवर्क ले जाओ, 7-8 के बीच में आप लिखोगे। और थोड़ा सा ऐसा लिखना कि जिसका ठीक लगे तो मैं ग्रुप के ऊपर डलवा दूं, ताकि हेल्प हो जाए। 7-8 का आप लिखोगे, खुद बनाओगे, 7-8 का भी कराया नहीं तो एडवांस में होमवर्क ले लो। ठीक है, 5-6 लिख लिया, पहले कॉलम में 5, तीसरा में 6। लिखो सूट अंडर सेक्शन 5, 5 में लिखो, इज बेस्ड ऑन टाइटल, which may be either possessory or ownership. Section 6. A suit under Section 6, court merely sees. अभी तो सेक्शन पूरा पढ़ाना है, पूरा पढ़ा कर फिर 7-8 को निकलना। हाँ रहता है अभी। हाँ क्या लिखा है? सीज प्लेंटिफ्स पोजेशन, ऊपर कोमा है, प्लेंटिफ्स पोजेशन 6 months prior to the date of the suit। ठीक हो गया ना? लिखो 5 में। The procedure to be followed under Section 5 is that provided by CPC। 6 में लिखो, Section 6 provides a summary remedy to a person who is dispossessed without consent or due process। ठीक है जी। नंबर 3, ये थर्ड लिखो जरा, नंबर उसमें सेक्शन 5 में लिखो, अंडर सेक्शन 5 a suit can be maintained, समझते हुए, can be maintained even after dismissal of the suit अंडर सेक्शन 6। दिक्कत तो नहीं है ना इस पॉइंट में? ठीक है जी, वाइस वर्सा बताओ 6 में क्या लिखना चाहिए? लिखो वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। लिखो सेक्शन 5 में लिखो दैट नेचुरल फर्दर रेमेडीज like appeal, review, etc. are available। सेक्शन 6 में लिखो only revision is permissible।
बताओ, सेक्शन 6 का सूट गवर्नमेंट के केस में हो सकता है? हो सर। सेक्शन 5 का हो सकता है गवर्नमेंट के केस में? हो सर। नो? नो। वोट बना दिए तो वोट। सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 5, यस नो? एक यस, बाकी दो नो। नो। नो, आप लिख दिया मैंने। हाँ जी, क्या लगता है जेटी? यस। वर्षा ने करना पार्टिसिपेट? ठीक है, वाई नो? गवर्नमेंट अगर रिक्वायर करेगी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल व्यूज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। Anybody's personal जजमेंट। आप जजमेंट दे रहे हो, फैसले सुना रहे हो, फैसले अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हुए। हाँ जी। हाँ, अगर कुछ सॉलिड है, यानी कुछ बेरेक्ट में लिखा है, कुछ आप केस लॉ से उसको समर्थन कर सकते हो, तो मैं इंटरेस्टेड। हाँ जी रवि, वाई नो? देखो, जहां तक मैं सही पकड़ पाया हूँ, ठीक है ना, वाई यस। ये नो का भी रीजन है। कहाँ लिखा है सेक्शन 5 में? कहाँ से निकाला आपने? है ना, अंदाजा ठीक था मेरा। ठीक है, मैं सीरियसली चाहता हूँ कि कई बच्चे जो है ना प्रिपरेशन जो है ना करें, एक बार ट्रू अटेम्प्ट दें वो। ठीक है ना, जो फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैच कर लेता हूँ, लेकिन बशर्ते उनकी लाइफ में सब कुछ सही रहे। ठीक है ना, भगवान उनकी तरफ हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखे। ठीक है ना, और वो मेहनत करे और वो निकल जाए भैया। ठीक है ना, फटाफट से निकल जाए। देखो अगेन, सेक्शन 5 में कुछ लिखा है ऐसा, अभी तक कुछ डिस्कस हुआ तो हमने कहां से निकाला? ठीक है ना, हम तो क्वेश्चन आते फटाक से टूट पड़ते हैं कि अगर हम जज होते सुप्रीम कोर्ट के तो हम क्या करते। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या लिखा है? अच्छा, नया तो नहीं लिखा है। चलो नेक्स्ट लिखो, 5 में लिखो। हाँ, 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 लिखो। फिर अपने वाले डिफरेंस में क्या लिखा था? नहीं लिखा है ये पॉइंट? लिखो, लिखो 5 में लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। सूट अंडर सेक्शन 5 is maintainable against anybody। सेक्शन 6 में लिखो, सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट is not maintainable। लिखो, लास्ट लास्ट डिफरेंस लिखो 5 में। अ डिसीजन rendered on the question of title slash right under section 5 will operate as res judicata। सेक्शन 6 में लिखो, समझते हुए, जो आज की डिक्टेशन निकली उसका भी एक पार्ट है। लिखो, वाइसा वर्षा, वाइसा वर्षा अपॉन डिसीजन on the question of title under section 6, comma, no res judicata
shall be operated upon next suit based on same title on same parties until unless applicable through explanation 4 section 11 CPC। चलो पॉइंट समझ में आया? लास्ट डिक्टेशन समझ में आई? डिक्टेशन जो आज रेस्टोडिकेटा की थी, अगर नहीं समझ में आई तो पूछ लो, ठीक है? खत्म कर लो, मेरे को बहुत खुशी है कि 5-6 खत्म हो रहा है, ठीक है ना? इसकी भी रेस्टोडिकेटा की क्लास बना दी, लेकिन पूछना है तो पूछ लो, ठीक है ना? हाँ जी, लास्ट पॉइंट जो डिफरेंशिएशन कहा वो प्लस जो आज डिक्टेशन कराई है उसका तीसरा पैराग्राफ, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कितने पैराग्राफ रहे उसमें? तीन ही है? तो दूसरा पैराग्राफ जिसमें सेक्शन 5 और 6 का जिक्र है, नहीं है? चलो आओ आओ मेरे पे। सेक्शन 6 प्रोविजन थर्ड, नो अपील, नो को जरा बॉक्स कर लो, नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन। सेक्शन 6 के अंदर कोई भी सूट आ गया तो उसकी अब आगे अपील नहीं जाएगी। सेक्शन 6 प्रोविजन थर्ड, ठीक हो गया? मना कर दिया, अपील अपीलेबल नहीं है ये। नोर शेल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिक्री भी अलाउड, ना ही रिव्यू अलाउड है। क्या रह गया? रिवीजन रहेगी। यानी सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 6(3) क्या कह रहा है? 6(3) प्यार से आपको ये समझा रहा है नेगेटिवली कि रिवीजन अलाउड है बस, ना अपील ना रिव्यू, ठीक है? सही, पूछो रेफरेंस, रेफरेंस अलाउड है? चिप्सी वाले, क्या रेफरेंस अलाउड है? रेफरेंस अलाउड, यस नो, एक यस एक नो। आ गया आप, नो यस, ठीक है। वर्षा ने तो पढ़ा है रेफरेंस, आप बताओ। नो, वाई वाई यस, यस वाले, यस यस वाले, आपने तो नो बोला, यस वाले। वो सेफ होता अगर नो बोलते ना, तो वो सेफ होता कि इसमें लिखा ही नहीं हुआ तो फिर हम क्यों अप्लाई करें, तो नो, वो सेफ होता, ठीक है ना? और कौन है यस वाला? वाई वाई यस, होता होगा है? हाँ हाँ बोले दो। अच्छा अच्छा, बिना बेस के मत बोला करो, बेस होना चाहिए नीचे, आपकी आपकी जो भी ओपिनियन है, ठीक है ना? बेसलेस कुछ नहीं होता, बेसलेस, बेसलेस इट कैनॉट स्टैंड, सिंपल, बेसलेस है तो गिर जाएगा। वाई नो, नो नो वाई? सर इससे अपनी नहीं जाएगी, तो अगर अपनी नहीं जाएगी फिर कौन सी कोर्ट किसको रेफर करेगी? रेफरेंस है, जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड पे तो रेफरेंस होता नहीं है। हाँ, जुरिस्डिक्शन कराओगे मतलब कि वो तो चलो वैसे वाला दूसरा वर्ड यूज करना सर, बट बेसिकली रेफरेंस नहीं। सिंपल, रेफरेंस बोला नहीं आ रहा, ठीक है? रेफरेंस जो है वो तो हमेशा लो पॉइंट पे जाता है, यहाँ पे क्या लेना देना उसका, इसलिए एप्लीकेबल नहीं हुआ। हाँ ये कह सकते थे मेरे को कि इसमें लिखा ही नहीं हुआ, हम क्यों अप्लाई करें, है ना?
सेक्शन 5 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन सेक्शन 6 में तो मना कर रहा है एक जगह और एक जगह मना नहीं कर रहा है। चलो आओ, 4 नंबर 4 पढ़ रहा हूं। नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयरऑफ। यस, सेक्शन 6 का यदि सूट का जो भी हाल होना है वो हाल हो गया, डिसमिस होना तो डिसमिस हो गया, और भाई अगर ऑन मेरिट अगर डिसाइड हुआ तो डिसाइड हो गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बार करे किसी बंदे को वो सू करे किस चीज के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए अपने टाइटल को, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी के लिए, एंड टू रिकवर और उसका पोजीशन रिकवर कर दे। सेक्शन 6 का 4 ये बोल रहा है कि सेक्शन 6 में अगर आपका सूट रिकवरी ऑफ पोजीशन का खत्म हो गया है, डिसअलाउ हो गया है या डिसमिस हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप सेक्शन 5 में जाइए और रिकवरी ऑफ पोजीशन कर लीजिए। लेकिन कब होगा, सेक्शन 5 का कब होगा, कल सारा ये यही समय निकला है कल। एडिक्वेट, यस, एडिक्वेट टाइटल यदि उसके पास है, ठीक हो गया, सिंपल, चलो डन। सेक्शन 6 इज ओवर, सेक्शन 5 6 इज ओवर, मुबारक हो। चलो मैं आज वो डालूंगा बैनर बना के, मुबारक हो सेक्शन 5 6 खत्म कर लिया। हाँ मैं डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा। हाँ जी, 7 रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। शाबाश। सेक्शन 5 में क्या है, हेडिंग पढ़ो सेक्शन 5 की, ठीक हो गया, रिकवरी, रिकवरी नहीं है, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। 7 क्या है, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक हो गया, फर्क समझ में आ गया। चलो, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्कुल, अगेन ओहो तुम्हारा प्यारा वर्ड एंटाइटल्ड, लिखो, करो अंडरलाइन, आंखों का तारा तुम्हारी, एंटाइटल्ड of specific movable property may recover, underline, may recover it in the manner provided by CPC। सिंपल, शेम टू शेम, है ना, शेम टू शेम है, मैं इसलिए ऑलरेडी कह रहा हूं कितने दिन लाओगे, मैं नहीं लगाऊंगा इसमें दिन, ठीक हो गया, सिंपल 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 बता दिया भाई। स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की यदि रिकवरी करनी है, देर इज अ सीपीसी, ठीक है जी, जाइए और कर लो भैया, खत्म, हिंग लगी ना फिटकरी, ठीक है जी, रंग भी चौका आ गया, ठीक है, सिंपल। जहां कहीं भी क्वेरी आए, ठीक है ना, तो सेक्शन 5 में फोल्ड करना, 6 के साथ फोल्ड करना उसको, और उस क्वेरी का आंसर निकाल लेना। सेक्शन 6 में ना ही जाओगे तो ठीक रहेगा, सेक्शन 5 से ही काम बन जाएगा, तान बात जाएगा, ठीक है ना। सेक्शन 6 को मत छेड़ो, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 6 को छेड़ोगे, सेक्शन 6 को छेड़ोगे तो एडवर्स पोजीशन भी छेड़ेगा, एडवर्स पोजीशन छेड़ेगा तो तुम्हारी बत्ती गुल हो जाएगी, ठीक है, तुम्हारे सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। चलो एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है भैया। एक ट्रस्टी में सू अंडर दिस सेक्शन, को एक ट्रस्टी है वो भी इस सेक्शन के अंडर सू कर सकता है फॉर द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, किस लिए, कि मेरे को मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन दिलवा दिया जाए, टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ठीक है जी, किसके लिए, बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए, इन विच द पर्सन, ठीक है जी, जो भी पर्सन में निहित है, फॉर हुम ही इज ट्रस्टी इज एंटाइटल्ड, जिसके लिए ट्रस्टी एंटाइटल्ड है, ठीक है। पहले तो सवाल ये निकालोगे कि क्या मूवेबल प्रॉपर्टी पे ट्रस्ट क्रिएट किया जा सकता है, सोचो, सिंपल है, ये वोटिंग नहीं करूंगा मैं, 2 यस 3 यस, सिंपल, बिल्कुल करा जा सकता है, ठीक है ना, जैसे कि क्या गाड़ी पे ट्रस्ट हो सकता है, ट्रस्ट के नाम पे गाड़ी, बहुत चालाक हो गया है लड़का ना, ये हाथ से बाहर निकल रहा है, ये सवाल मोल्ड कर देता है। हाँ, एनी प्रॉपर्टी, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, आपने ट्रस्ट की डेफिनेशन लिखी है, मैंने लिखवाई है इस बार, ठीक है, क्या काम होता है ट्रस्ट का,
बेनिफिशियरी को बेनिफिट पहुंचाना, बस खत्म बात। ठीक है जी। जैसे गाड़ी की बात कर लो, बहुत ही महंगी गाड़ी किसी ने ली है, ठीक है जी, और वो समाज की सेवा या पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर ट्रस्ट पे वो प्रॉपर्टी जो है वो चढ़ा दी है, मतलब उसके नाम पे ट्रस्ट बना दिया है। ऐसी गाड़ी है, लेट्स से कि भाई वो डेली जैसे बुकिंग होती है ना शादियों में, उसकी बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसकी बुकिंग उठेगी, बुकिंग उठने के बाद क्या है, ये बच्चा बच्ची उससे पढ़ाई करेंगे, ट्रस्ट बनेगा, बन गया, ठीक हो गया। तो क्या कह रहे हैं, एक ट्रस्टी है वो भी सू कर सकता है पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, वो जो ट्रस्ट वाली। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, एक स्पेशल और टेम्परेरी राइट, अंडरलाइन करो, स्पेशल और को सर्कल करो और टेम्परेरी राइट को भी अंडरलाइन करो, टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्या राइट है, प्रेजेंट पोजेशन का राइट है, किस पर, मूवेबल प्रॉपर्टी पर, इज सफिशिएंट, वह पर्याप्त है कि वो सपोर्ट करे किसको, एक सूट अंडर दिस सेक्शन को, ठीक हो गया। आओ जरा समझते हैं इसको, ऊपर समझने में कुछ भी नहीं, बस ये याद कर लेना लिखा क्या हुआ, ये लाइन अच्छे से याद कर लेना एक्सप्लेनेशन पर उनकी, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है समझाने के लिए, बस बच्चों के माइंड में क्या रहता है, ट्रस्ट मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओ मठ बन गया, मठ बनने के बाद इधर यूनिवर्सिटी बन गई, इधर एडम डिपार्टमेंट बन गया, इधर ये पार्किंग बन गई, उधर वो बन गई, इधर महल बन गया, इधर कुटिया बन गई। उसको बहुत वो कन्फाइन होता है माइंड से। अगेन ट्रस्ट किसी भी प्रॉपर्टी पर हो सकता है। जब मुस्लिम लोग पढ़ोगे तो वक्फ कुरान के ऊपर ही वक्फ बन सकता है, कुरान मजीद के ऊपर, ठीक हो गया, सिंपल। क्या कुछ पैसे हैं, लेट्स से मेरे पास 100 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ रुपए में मैं ट्रस्ट बना दूं और एज ए ट्रस्ट जो है किसी अकाउंट में डलवा दूं, कि इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा वो फलाने फलाने बंदों की पढ़ाई के लिए होगा, बोलो, हो सकता है ऐसे? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। वैसे पैसा कौन सी प्रॉपर्टी थी, मूवेबल इमूवेबल? चलो देखो जरा क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, देखो जी बहुत सिंपल है। मिस्टर यू गया ड्राई क्लीनर के पास, मिस्टर डी, ड्राई क्लीनर समझ गए ना, मिस्टर यू ने अपनी यूनिफॉर्म ड्राई क्लीन करानी है, ठीक हो गया, सही। डी के पास गया, डी ने बिल बना दिया 1000 रुपए का, ठीक है, सही। चलो अब इसने बोल दिया भाई 2 दिन, ये लो मेरी तरफ से आप 2 दिनों में ले जाना, मैं 2 दिन में ड्राई क्लीन करवा के रख दूंगा, ठीक है जी। अब ये जो है 5वें दिन पहुंचता है, ठीक है, बिल पे नहीं किया है, ठीक हो गया। ये बोलता है कि ला भाई ड्रेस दे दे, ठीक हो गया। डी इसको मना कर देता है, पैसे दे भाई, कर सकता है ऐसे, कर सकता है, बिल्कुल सही है। अंडर विच सेक्शन, यानी तो आप लोग कह रहे हो कि इसका राइट आ गया, इसका राइट जनरेट हो गया, क्या नाम है इस राइट का, चलो हिंट देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले, राइट टू लीन। आई होप थोड़ा सा माइंड वहां पे जाके अटैच करोगे, ध्यान रखना, ये जितने भी छोटे छोटे बेयर एक्ट आएंगे इसमें लिंकिंग बहुत ज्यादा है। जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक बेयर एक्ट पढ़ रहा है और लिंकिंग नहीं कर पा रहा है, ध्यान रखो कोई फायदा नहीं है। सिविल 2 में आएगा, ठीक है ना, और हमेशा लिंक्ड ही आएगा, कितना ही बच के भाग लेना, आज नहीं पढ़ोगे फिर पढ़ोगे, फिर कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, ध्यान, ठीक हो गया, सिंपल। चलो ये निकल गया, मिस्टर यू निकल गया, ठीक है ना।
और शॉप के बाहर बैठ गया छुप के, ठीक है जी। मिस्टर डी जो था वो भी निकल गया अपने एजेंट को छोड़कर, ठीक है जी। मिस्टर यू शॉप के अंदर घुसा और उसने एजेंट को बिल दिखाया यार, वो एक बार वो मैंने वो दिया था, कोट दिया था, कोट पैंट दिया था वो ड्राई क्लीन करने के लिए, अरे यार वो फंक्शन में करना है, मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है ना, ये बिल है भाई देख ले, ताकि वो देख ले ना कौन सा है, ठीक है ना, ये दिखा दिया, बिल दिखा दिया, ठीक है ना। एजेंट ने क्या करा, एजेंट को पता नहीं था, एजेंट ने उठा के वो यूनिफॉर्म ड्राई क्लीन हुई, ठीक है ना, वो दे दी, सही हो गया। चलो डी को पता चला, डी की मदद कर सकते हो क्या, रिकवरी ऑफ पोजेशन, पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का सूट डालना है, डलवा दें, बताओ वकील हो आप। यस डल जाएगा, एक वोट की, नो नहीं डलेगा, डल जाएगा, हाँ जी डल जाएगा, यस नो, ठीक है जी, वाई यस। सर डी का टेम्परेरी राइट टू था ही उस प्रॉपर्टी के ऊपर, एक्सप्लेनेशन को के अंदर आ जाएगा टेम्परेरी किस चीज का, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने का, मूवेबल टेम्परेरी राइट टू पोजेशन। प्रेजेंट पोजेशन, वर्तमान में किसके पास पोजेशन का राइट है, वर्तमान में मिस्टर डी के पास प्रेजेंट पोजेशन का राइट है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसे ही केस आएंगे, ठीक हो गया, सही। अब ये देखो मिस्टर डी, ठीक है ना, वो इस ड्रेस का मालिक कौन है, यू, ठीक है ना, यू के खिलाफ ही केस डाल दिया है, किस चीज का, पोजेशन मेरे को दे भैया, तूने ले कैसे लिया, ठीक है, क्यों, किस हक से, क्योंकि प्रेजेंट पोजेशन का हकदार कौन है, मिस्टर डी है, क्यों, क्यों है, ड्यू है, बिल्कुल 1000 रुपए ड्यू है, अगर उसको पोजेशन चाहिए, मिस्टर यू को चाहिए पोजेशन, तो 1000 रुपए पे करे और ले जाए कोर्ट को, कौन मना कर रहा है उसको, तो सर यहाँ पे सर वो जो डी है सर, हाँ वो रिकवरी ऑफ मनी का भी डाल सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल डाल सकता है, बिल्कुल डाल सकता है, पर इतना घूम घाम के क्यों, मनी तो ड्यू है ही है, ठीक है ना, और मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये जब भी आएगा ये अपना ले जाएगा, ड्राई क्लीन से तो महंगा सूट है, ठीक है ना, तो जो ये मिस्टर यू है उसको जल्दी होनी चाहिए, ठीक है ना, एक राइट दे दिया कॉन्ट्रैक्टर ने, क्या राइट टू लीन दे दी, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी आएगा, ये वहां भी टक्कर मारेगा, ठीक हो गया, राइट आ गया, ठीक है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा है, चलो मिस्टर डी का फायदा है, बिल्कुल शॉपकीपर का तो फायदा ही है, अच्छा है वो 2-3 महीने नहीं आएगा तो बढ़िया यूटिलाइज कर लेगा वो, ठीक हो गया ना। सिंपल, ठीक हो गया, सही। चलो देखो सेक्शन 8 के साथ नहीं पढ़ो, सेक्शन 8 के बिना सेक्शन 7 को नहीं पढ़ोगे, जैसे 5 को बिना 6 के नहीं पढ़ सकते थे, ऐसे ही 7 को 8 के बिना नहीं पढ़ सकते थे। लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन, लायबिलिटी उत्तरदायित्व किसका, जो पोजेशन में है बंदा, नॉट एज ए ओनर, बट वो ओनर नहीं है, समझ गए ना, ऐसा एग्जांपल आ चुका है कि जो ओनर नहीं है लेकिन फिर भी उस चीज के पोजेशन में है, ठीक हो गया। क्या है लाइबिलिटी, टू डिलीवर टू पर्सन, ठीक है ना, कि वो डिलीवर कर दे, किसको, पर्सन्स लिखा हुआ अंडरलाइन, पर्सन्स, एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन, जिनके पास इमीडिएट पोजेशन का राइट है, सही। चलो यहीं से ये सेक्शन पढ़ने से पहले जरा कॉमन सेंस का बटन दबा देता हूं मैं, ये जो ऊपर एग्जांपल लिखा है मैं इसी को मैनिपुलेट कर रहा हूं,
ये लो जी, मैं इसी को मैनिपुलेट कर रहा हूं। हुआ क्या, यू आया, यू बेरंग लौट गया, समझ गए? मुहावरा बोल दिया मैंने। हाँ ना समझ गए, ठीक है, बताओ मैंने हाँ समझ गए, नहीं समझे तो ताकि मैं बताऊं एक पॉइंट। समझ गए? बेरंग मतलब खाली हाथ उठ। ठीक हो गया? चलो ठीक है। और अब ये जो ड्रेस है ना, ये पड़ी हुई किसके पास? डी के पास। सही। चलो, डी का एक बिजनेस और भी है। क्या है? डी जो है किराए पे भी देता है ड्रेस। ठीक है ना? तो मिस्टर एक्स आया। मिस्टर एक्स का जो डील डोल है वो यू के जैसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। क्या क्या कहना चाहिए उसका, फिजिक फिगर जो भी। चलो, एक्स जो है डी के पास आता है, बोलता है कि भाई फलाना सूट दे दे, कोई कैसा चाहिए, और वो एग्जैक्ट वो मतलब बाई चांस है वो वही वाला कलर बताता है जो मिस्टर यू का कलर था, जो ड्राई क्लीन के लिए मिस्टर डी के पास आया हुआ। इसने किराए पे चढ़ा दिया। डन। चलो, किराए पे चढ़ गया। चलो सिंपल। अब सीन क्या हुआ, एक्स जो है वो यू का जानकार है। जिस फंक्शन के लिए यू टक्कर मार रहा था कि मैं इस फंक्शन पैर के जाऊंगा, मिस्टर एक्स पैर के पहुंच गया। ठीक हो गया? चलो, अब एक्स किसको दे ये मूवेबल प्रॉपर्टी, यू को या फिर डी को? अभी कॉमन सेंस से बताओ। हाँ, डी। डी दो वोट। डी तीन। हेमंत। डी। डी। और क्या लगता है? ठीक है, सही, बिल्कुल सही। कैसे? आपने देखो अभी अभी हेडिंग में पढ़ा है, इमीडिएट एंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन। इमीडिएट पोजेशन किसका है? इमीडिएट पोजेशन डी के पास जाएगा। ठीक हो गया? यानी डी, देखो डी को फ्री कर दिया है। डी अगर चाहे तो डी वर्सेस यू सूट हो सकता है। सिंपल, अगेन रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। डी वर्सेस एक्स भी हो सकता है। ठीक हो गया? चलो, एक्स अकॉर्डिंग टू सीपीसी एक सूट और डाल सकता है स्पेशल। है? सेक्शन 88 सीपीसी का सूट अब डाल सकता है। रीड विद ऑर्डर 35। कर लेना, देख लेना इसको। आगे आ जाओ, हेडिंग पे आ जाओ। चलो जी, एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ ए पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अंडरलाइन करो, पोजेशन और कंट्रोल दोनों ही चीजें आ गई हैं। ठीक है ना? अंडरलाइन करो, आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर आर्टिकल, पर्टिकुलर करना चाहो तो कर सकते हो। ऑफ विच ही इज नॉट द ओनर, जिसका वह ओनर नहीं है लेकिन पोजेशन है या फिर कंट्रोल है। मे बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर, उसको भी स्पेसिफिकली कंपेल किया जा सकता है डिलीवर करने के लिए। इट, उसको, पोजेशन को, उस प्रॉपर्टी को, उस आर्टिकल को, टू द पर्सन, उस बंदे को जो कि एंटाइटल है उसके इमीडिएट पोजेशन के लिए, उसके इमीडिएट पोजेशन के लिए जो भी एंटाइटल रहेगा उसको, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है ना? इन नीचे लिखे हुए केसेस के अंदर ही केवल। ठीक है जी? आओ, कब? बड़े ध्यान से समझ लेना। अपने माइंड में जहां जहां जो जो घूम रहा है, स्लैप डे, थप्पड़ डे, जो कुछ मना रहा है भैया बाहर आ जाना।
ठीक है ना। ये दिमाग अब बहुत घुमाने वाला सिस्टम शुरू हो गया है, ठीक है ना। ये पीछे ऑन कर लेंगे, ये ठंडी हवा निकल जाए। अन्य तो एक काम कर, फिर छिकती घूमेगी, इधर आ जा। मतलब बीमार होना है, यहाँ की छुट्टी हो जाएगी, वो मजदूरी करनी पड़ेगी, आ जाओ चुपचाप। ठीक है, सही। ये नीचे लिखे हुए केसेस है बस, इनके अकॉर्डिंग, अदरवाइज नहीं। कब? व्हेन द थिंग क्लेम्ड is held by the defendant as the agent or trustee of the plaintiff। जब ये जो थिंग्स क्लेम, ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है वो अपने हेल्ड करके रखा है किसने? डिफेंडेंट ने। कैसे? एज द एजेंट, या तो एजेंट होने के नाते या फिर ट्रस्टी होने के नाते, किसे? प्लेंटिफ के। ध्यान रखना, अब से ध्यान रखना पड़ेगा एसआरए के अंदर। ये क्या करेगा? हर जगह पार्टी को पर्टिकुलर नहीं बताएगा कि इस बंदे के हाथ में ये कोज ऑफ एक्शन, ये सिंपल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बोल देगा। ये अब आपको सोचना पड़ेगा, ठीक हो गया। ये कहानी अब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के नजरिए से सोचनी पड़ेगी। ये तो 2 मिनट में बस प्लेंटिफ और डिफेंडेंट लिखेंगे अब। और ये सिर्फ एक सेक्शन की कहानी नहीं है, ये शुरू हो गया आज से। चलो, इसके अंदर सूट कौन डाल रहा है? प्लेंटिफ डाल रहा है। और क्या सूट डाल रहा है? रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। डन, ठीक है जी। और क्या बोल रहा है खुद को? कोज ऑफ एक्शन क्या है? ध्यान नहीं दे रहे। क्या है कोज ऑफ एक्शन? किस ग्राउंड पे मांग रहा है पोजेशन? किस ग्राउंड पे रिकवरी करवा रहा है? एंटाइटल्ड इमीडिएट पोजेशन, इमीडिएट पोजेशन। ठीक हो गया। देख लो, जैसे ही मैं बोलता हूं ना कि थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, उसी से मैं लिथार्जिक हो जा रहा है बच्चा क्लास का। उसको बहुत डिफिकल्ट करना है पहले, इस किसी सेक्शन को फिर समझना है। इच्छा है तुम्हारी, ठीक है ना। इमीडिएट पोजेशन पे क्यों? क्या बोल रहा है प्लेंटिफ? कि देखो जी, डिफेंडेंट ने ना जी, ठीक है ना, वो चीज बस होल्ड करके रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो मेरा ही ट्रस्टी है या फिर मेरा ही एजेंट है, ठीक है ना। मैंने अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी अपने एजेंट या फिर ट्रस्टी को दे दी है, ठीक है ना। अभी इसने मना कर दिया है, ठीक है। इमीडिएट पोजेशन किसके पास जाएगा? मेरे पास ही जाएगा। मैंने केस डाल दिया है, ठीक है ना, और मैंने पोजेशन रिकवर कर लिया है। ठीक हो गया, सिंपल। चलो, व्हेन कंपनसेशन इन मनी, बड़े ध्यान से, व्हेन कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ, नॉट को जरा बॉक्स कर लेना, अफोर्ड को अंडरलाइन कर लेना। प्लेंटिफ क्या? अंडरलाइन एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ थिंग क्लेम्ड। जब पैसे का जो कंपनसेशन है, कंपनसेशन में जो पैसा मिल रहा है वो पर्याप्त रेमेडी नहीं है, ठीक है ना। किस चीज की? जो भी आर्टिकल जिसका नुकसान हुआ है, जो लॉस हो गया है, ठीक है ना, उसके बदले में आपको पैसे देगा ना कोई, तो भाई नहीं होगा एडिक्वेट रिलीफ, ठीक है ना, सिंपल। ठीक है ना। बी फॉर बेंगल लिख लेना, याद हो जाएगा। बेंगल किसके? दादी सती की। ठीक हो गया। कितने ही पैसे ले लो, उसके बदले में नहीं ना, नहीं होगा। सही हो गया। बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, ऐसा मतलब ऐसा है तो नहीं ना किसी के माइंड में कि ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है। पैसे तो हर जगह किसी के माइंड में है तो नहीं ऐसा। चलो ठीक। सी, और कब? when it would be extremely difficult, जब यह अत्यंत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्या? कि एसरटेन करें कि एक्चुअली कितना डैमेज कोज हुआ है उसके नुकसान होने से, उसके उसके नुकसान से कितना डैमेज हुआ हो गया, कितना भारी नुकसान बनेगा इससे, ठीक है ना। इसका अंदाजा लगाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, ठीक हो गया। तो कोई कंपनसेशन देने की आवश्यकता नहीं है, कोशिश करो कि वही आर्टिकल हम दे दें वापस।
ठीक हो गया? मेरे को याद आ रहा है, किसी ने पढ़ी ब्योमकेश बख्शी, वो पढ़े नॉवल, पढ़े किताब पढ़ी? उसमें ना दो केस, ओरिजिनल केस बताते हैं ब्योमकेश बख्शी के, ठीक है ना? तो ओरिजिनल केस है दो उसके अंदर। एक के अंदर तो क्या होता है कि एक कोई बहुत बड़े वो होते हैं, जागीरदार वगैरह होते हैं, जमींदार होते हैं बहुत बड़े, पश्चिम बंगाल के, और ये तब की बात बता रहा हूँ जब बांग्लादेश और इंडिया एक ही है, ठीक है ना? तो उस राज्य का जो स्टेट है बांग्लादेश का, उसका स्टेट का अभी भी पता नहीं है, ऐसे कुछ कुछ सनातनी, कुछ हिंदू सा नाम है, फलाना सिंह ऐसे करके राज्य का नाम है बेसिकली। चलो, तो उस स्टेट के जो है वो पुराने राजा थे, वो बहुत बड़ी जागीर थी उनकी, ठीक है जी। अब वो जागीर कैसे बनी उनके पास एक हीरा आया, एक डायमंड आया उनके पास, ठीक है ना? उस डायमंड का नाम था सीमांत हीरा, ये उसी नाम से मिलेगा आपको, ठीक है ना? सीमांत हीरा नाम था, ठीक है। जब से हीरा उनके उसमें तिजोरी में या उनके धन में शामिल हुआ, तब से उनकी धन संपदा, प्राण प्रतिष्ठा और उनकी ताकत तो बढ़ रही थी, ठीक है जी। हुआ क्या, सीमांत हीरा जो है जिस बंदे के पास था, उसके सगे चाचा ने चुरा लिया। उसका सगा चाचा तो है वो इंडियन जो हिस्ट्री है, ठीक है ना, उसमें बहुत फेमस साइंटिस्ट है, पश्चिम बंगाल के एक बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, बंदोपाध्याय थे, ठीक है ना? मैं नाम नहीं लूंगा थोड़ा। वो क्या है, वो चुरा लेते हैं। तो ब्योमकेश बख्शी को ये टारगेट मिलता है कि वो घर पे जाए उस साइंटिस्ट के। वो साइंटिस्ट कैसा है, उसका आईक्यू जितने भी उस समय के पृथ्वी लोक पर इंसान है उनसे सबसे ज्यादा है। वो सबसे पहले आते हैं ब्योमकेश बख्शी क्या है, भेष बदल के जाता है, अपना नाम नूम बदल के वो पकड़ लेता है उसको, ठीक है जी। और वो उसको चैलेंज करता है, ये देख मेरे घर के अंदर, महल जैसा करता है उसका, बोला मेरे घर के अंदर ये हीरा है, ठीक है ना, और तू अगले एक हफ्ते तक फ्री है। अपने सारे नौकरों को बुलाकर वो बोल देता है साइंटिस्ट की ये फ्री है, बाबूजी जहां जाना चाहे, ठीक है ना, ये जा सकते हैं, ठीक है ना, और तू फ्री है भाई, एक हफ्ता है, और एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर वो हीरा नहीं मिला, ठीक है ना, तो हीरा मेरा, तू चला दी। ब्योमकेश बख्शी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक, ठीक हो गया, सिंपल। तो ये क्या है, सीमांत हीरा है क्या, अब वो लॉस हो गया, जिस परिवार का लॉस हुआ वो अंदाजा नहीं लगा सकते भाई साहब कितना नुकसान हो गया उसका, समझ पा रहे हो? यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ मनी की बात नहीं है, यहाँ पर तो सिंपल है क्या है कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है कि कितना नुकसान हो गया, ठीक है ना? जब से हीरा गया है उस परिवार में से जहां से वो चुराया गया है, ठीक है जी, तब से उनका नुकसान पे नुकसान ही हुए जा रहा है, ठीक है ना? कई केसेस हार चुके थे तब तक वो, ठीक है जी, और कई जगह पे अदरवाइज लॉसेस हो चुके हैं। पार्टीशन में भी उस समय वो चल रहा था कि ये हिस्सा चला जाएगा उधर, ठीक है ना? सही, सिंपल। चलो, डी, when the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff, जब उस वस्तु का पोजेशन, उस मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन प्लेंटिफ से गलत तरीके से ट्रांसफर करवा दिया गया है, तो वो क्या कर सकता है, वो भी इमीडिएट पोजेशन के लिए बेसिकली केस कर सकता है, ठीक हो गया? लेट से ये जो हमने एग्जांपल किया था, ठीक है ना, ये जो मिस्टर एक्स आया था डी की दुकान में, लेट से ये प्लांट किया गया था मिस्टर यू के द्वारा, कि तू चला जा वहां, तू मांग ले किराए पे, ठीक है ना, और ठीक है ना, और मैंने दे दी, ठीक हो गया? तो क्या करेगा, डी में रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट डाल दे, सिंपल। क्या सी के अंदर डाल सकते हैं? इसी केस में हाँ, इसी केस में। नो, नहीं, एक वोटा ये नो, फटाफट फटाफट। नहीं, नो, तीन, चार, पांच, बिल्कुल सही, क्यों? एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कहाँ है, 1000 रुपए का नुकसान हुआ है, ठीक है, बाकी सारा फायदा है। और अगर बहुत कॉन्क्लूसिवली सोचोगे तो मिस्टर यू का ही नुकसान हुआ है, ठीक है ना? सूट तो महंगा ही होता है ड्राई क्लीन से, जिस सूट की ड्राई क्लीन 1000 रुपए में हो रही है, सोचो वो सूट कितना महंगा होगा, समझ रहे हो ना? चलो जी, हाँ बताओ जरा, बी में डाल दे, क्यों? Snicket could not afford the plaintiff adequately, लेकिन compensation मिलेगा उसको तो उसका adequately मिल यस, जाएगा। एडिक्वेट रिलीफ है, कंपनसेशन मनी, ठीक है ना? ए में बहुत सिंपल है,
क्या मिस्टर एक्स का ट्रस्टी है, मिस्टर एक्स ट्रस्टी है या फिर एजेंट है डी का, बस खत्म बात। ठीक है ना, डी में डल जाएगा, डी में डल जाएगा, है ना, गलत तरीके से ले लिया, सही। चलो, एक्सप्लेनेशन, अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, जब तक कि कॉन्ट्रेरी प्रूव ना हो जाए, द कोर्ट शेल, अंडरलाइन, in respect of any article of movable property claimed under clause B and C। ठीक है ना, बी को तो बेंगल के नाम से याद कर दिया, सी को याद करो जरा, है, सी से को हाँ, सी को कोहिनूर से या फिर सी को कर्ज से याद कर लो। ठीक है ना, एक दूसरा केस बताता हूँ ब्योमकेश बख्शी का, वो भी हीरे का ही बताता हूँ। एक चोर ने कलकत्ता के बहुत बड़े ज्वेलर के पास से, असली के से, ठीक है ना, ज्वेलर के पास से एक नीलमणि, उसको नीलमणि बोलते थे, नीलम हीरा होता है, ठीक है, उसको चुरा लिया। ठीक है जी, और वो जो चोर है वो बहुत ही मतलब यूं था कि इससे पहले तकरीबन सैकड़ों चोरियां कर चुका है वो। ठीक है ना, और वो ऐसा चोर है जिसको कोई भी नहीं पकड़ पाया। ठीक है जी, जैसे ही वो नीलमणि, ठीक है ना, या फिर रक्तमणि, हीरे का नाम था रक्तमणि, क्योंकि वो नीलम के अंदर ना लाल कलर की आभा होती है, वो जब उसके अंदर से लाइट गुजारते हैं तो लाल रंग का चमकता है, वैसे नीलम हीरा है, आभास, हाँ हाँ नीला होता है, वो नीली आभा है, लेकिन उसकी नीली आभा के अंदर लाल एक लाइट अजीब सी, वो ना अट्रैक्ट कर लेता, कोई भी मनुष्य उसको देखता है तो वो हीरा उसको कब्जा कर लेता उसका। ठीक है जी, ये पता होगा नीलम हीरे की तासीर होती है, जो नीलम होता है वो तासीर के हिसाब से पहना जाता है। ठीक है, ये बड़े लोगों की बातें हैं, हम जैसे लोगों की, गरीब लोगों की बातें नहीं है। ठीक है ना, नीलम हीरा, हम नीलम हीरे को धारण नहीं करते, नीलम हीरा हमको धारण करता है। ठीक है ना, लेट से आप नीलम हीरे की एनर्जी को अगर नहीं कंट्रोल कर पाओगे तो वो आपका नुकसान करेगा, ऐसा कहते हैं। हाँ, हर, बट नीलम हीरा ऐसा होता है वो मार देता आदमी को, वो नुकसान करेंगे दूसरे पत्थर। हाँ वो तो है, लेकिन नीलम का थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, कोई भी पहन सकता है नीलम, बस सूट का नहीं पहन सकता नहीं, हाँ पुखराज वुखराज पहन सकते हो, थोड़े दिन में उतार दिए कोई बात नहीं, वो इस तरीके से नुकसान नहीं करेगा, वो तो काट भी देता है शरीर। ठीक है ना, सिंपल। मान लो किसी को टेस्ट करना होता है कि भाई तेरे को, तुझ तू तू नीलम धारण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो क्या करते हैं, लॉकेट बना के और उसको मतलब शरीर से टच हो जाए ऐसे वो कर देते हैं, फिर वो ऑब्जर्व करता है 3-4 दिन उसको। ठीक है, अगर चोट लग गई उसको, लेट से उसको चोट लग गई, ठीक है ना, उसके शरीर में कहीं पेन हो गया, उसको पैसे का नुकसान हो गया, उसी समय उसको उतार के साइड में रख देगा। ठीक हो गया। ठीक है, नुकसान दूसरे पत्थर का भी होता है, लेकिन नीलम बहुत भयंकर होता है, बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है, और नीलम जो है वो कैप्टिवेट कर लेता है। देखो उस चोर के साथ क्या हुआ, उस चोर के साथ क्या होता है, इससे पहले सैकड़ों चोरियां कर चुका है, लेकिन जब इसने नीलम हीरा चुराया, ठीक है जी, उसके बाद वो पकड़ा गया। ठीक है जी, और लगातार बीमार हो रहा है। ठीक है ना, उसमें पूरा वो वृतांत लिखा हो उसका, उस चोर का, कि उस चोर की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बेसिकली क्या करता था, जैसे एग्जीबिशन लगते हैं ना, हीरे हीरे जवाहरात के एग्जीबिशन लगते हैं, वो क्या है, वो ड्रेस पहन के, सिर्फ ड्रेस चेंज करके, ठीक है ना, कोई दाढ़ी मूंछ कुछ कुछ नहीं, ठीक है ना, ड्रेस चेंज करके मूछे लगा के, ठीक है ना, और पहुंच जाता, तो सबको ये लगता था कि भाई ये तो कोई राजा आदमी है भाई। ठीक है ना, इतना जबरदस्त ओरा था उसका, ठीक है ना, कि वो मतलब किसी के अंदर घुस गया और सिंपल ऐसे उठाया, अपनी पॉकेट में डाला और निकल जाता था, कोई शक नहीं करता, पुलिस वाले भी सलूट कर देते थे उसको, ये तो बहुत बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन जैसे ही उसके शरीर से नीलम टच होता है, ठीक है ना, उसका नुकसान होने लग जाता है। ठीक है ना, जेल में है, ठीक है, सारे हीरे मिल गए उसके पास है, लेकिन नीलम नहीं मिला, क्योंकि नीलम ने उसको कैप्टिवेट कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है ना, व्योमकेश बख्शी ने क्या अंदाजा लगाया कि इसका मतलब ये है कि वो नीलम हीरा अभी भी इसके शरीर के साथ कहीं टच है कहीं पर। ठीक है ना, क्योंकि शरीर के साथ टच होगा तभी तो नुकसान करेगा। ठीक है ना, तो ये तो पता लग गया व्योमकेश बख्शी को, भाई ये जो है इसके इसके एक्स ने अपने शरीर में ही कहीं छुपाया हुआ। ठीक है ना, तो लेकिन वो क्या है कि उसको समझाने के चक्कर में बुलाता है उसको, उसको समझाता है, देख तू क्या जिंदगी जी रहा था। ठीक है ना, तो ये स्टोरी बताता है उसको कि नीलम हीरा बहुत खतरनाक होता है,
और जिसके पास ये नुकसान कर रहा है उसको एकदम से इसका मुंह त्याग देना चाहिए, वो बच जाएगा, वरना वो बर्बाद हो जाएगा, पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। उस चोर को ये बात समझ में आ जाती है, ठीक है ना, तो वो हीरा अपने शरीर से निकाल के, ठीक है ना, बाहर फेंक देता है, ठीक है ना। वो हीरा जब वो बाहर निकलता है तो वो चमक रहा होता है विद अ वेरी कैप्टिवेटिंग रेड ब्लू लाइट, ठीक है। ब्योमकेश बख्शी उसकी तरफ देखता नहीं, बस देख के कि हीरा वहां पे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर काला कपड़ा डालता है, ठीक है जी, और उसके अंदर डाल के वो जो डब्बी होती है उसके अंदर डाल के उसको बंद कर देता है और उसको पकड़ा देता है जो उसका मालिक होता है, ठीक है जी। उस चोर ने स्पेशल अपने मुंह के अंदर गले से यहाँ पे ब्लेड लगवा के एक पॉकेट बनवाई, वो यूं करके यहाँ पे बना लेता है, ठीक है। पुराने समय में स्मगलिंग में काम आती थी। ठीक हो गया, सी को कर्स के नाम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक्सप्लेनेशन, हाँ सिर्फ बी और सी के रेफरेंस में है ये, दैट कंपनसेशन इज मनी would not afford the plaintiff adequate relief for loss of the thing claimed or as the case में भी जो भी केस, ठीक हो गया। Until contrary is proved, जब तक contrary चीज प्रूव नहीं हो जाएगी तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा। देखो यहाँ पर प्रिज्यूम लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन के लास्ट में, ये प्रिज्यूम जो वर्ड है इसको जरा बॉक्स कर लेना, और प्रिज्यूम के ठीक ऊपर वर्ड लिखा है शेल, तो कौन सी प्रिजम्पशन है, शेल प्रिज्यूम, शेल को भी जरा बॉक्स कर लेना, ठीक हो गया। ये पूछ लेते हैं कि कौन सी प्रिजम्पशन है, ठीक हो गया। चलो क्या कह रहे हैं, सिंपल कह रहे हैं कि भाई साहब अगर कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं होगा तो कोर्ट तो प्रिज्यूम करके बैठ जाएगी क्या, कि ये वो वाला आर्टिकल है कि जिसका कंपनसेशन इन मनी एडिक्वेट रिलीफ नहीं है। लेकिन अगर चाहो तो हम कॉन्ट्रेरी प्रूव कर सकते हैं, और अगर कॉन्ट्रेरी प्रूव हो गया तो फिर कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोई भी प्रिजम्पशन नहीं लगाएगी, ठीक है ना। चलो जी, बी क्या, दैट इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस, ठीक है जी, कि भाई साहब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, कितना नुकसान हो रहा है इसका अंदाजा लगाना, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो जी, बहुत सिंपल और सीधी सीधी बात है। बी और सी की बात करोगे तो इन बी और सी के अंदर कोर्ट प्रिज्यूम करके बैठा हुआ ऑलरेडी, सी में क्या प्रिज्यूम करके बैठा हुआ है कि कंपनसेशन मनी इज नॉट एडिक्वेट रिलीफ, और सॉरी बी में क्या, बी में तो ये, सी में क्या प्रिज्यूम करके बैठा हुआ कोर्ट कि भैया इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज, ठीक है ना। बट अगर दोनों ही केसेस के अंदर कॉन्ट्रेरी यानी इसके विरोधात्मक कुछ भी प्रूव हो जाता है तो कोर्ट फिर अपने प्रिजम्पशन छोड़ देगा, ठीक हो गया, बहुत सिंपल है। चलो इसके दो चार एग्जांपल हैं, फटाफट से करो और मुझे बताओ, अगर तुमने करा दिए तो फिर आगे हम गुजर जाएंगे। सर जो सी और डी है सर, इसके अंदर में सर जब अगर सर सी और डी या सी और डी, सी और बी, सी और डी सर, डी, हाँ दोनों सर, सी के अंदर में सर ये बता रखा है कि सर एक्सट्रीमली है सर, उसे पता ही नहीं कर सकते सर, डी में नहीं है, सी में सर, हाँ सी में है ये, हाँ हाँ तो सर ये पता ही नहीं कर सकते, तो सर इसके अंदर में ब्रो केस नहीं फाइल करेगा, केस नहीं फाइल कर सकता नहीं, टीबीएस में पढ़ा था हमने प्रिजम्पशन, हाँ सर, शेल प्रिजम्पशन कौन सी होती है, रिबटेबल इन ऑल सर्कमस्टांसेस। क्या डेफिनेशन लिखी हुई थी, मतलब डेफिनेशन तो नहीं बोलना चाहिए, क्या लिखा हुआ था इसके विषय में बैरेक्ट में, डेफिनेशन वाले उधर ही लिखा हुआ है, डेफिनेशन के बाद ही लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है, तीन थी ना, में, शेल, तीसरी कॉन्क्लूसिव, में के अंदर के अंदर में तो सर कोर्ट है ना एक तरह से सर उसे नोटिस होने देगा सर कि उसे डिस्प्रूव करें, कॉन्ट्रेरी प्रूव करे, सेल के अंदर में सर उसी की लाइबिलिटी आती है कि कोर्ट पूछ रहा है, शेल के अंदर कोर्ट नहीं पूछेगा, यहां पर पार्टी की जिम्मेदारी है क्या, डिस्प्रूव करे उसको, ठीक है ना, उसको डिस्प्रूव करे।
कॉन्क्लूसिव के अंदर कॉन्ट्रेरी प्रूफ डिसअलाउड है, अलाउड ही नहीं है, बस इतनी सी बात है। शेल प्रिज्यूम का मतलब ये है कि भाई साहब अगर सामने वाली पार्टी जिसको इसके कॉन्ट्रेरी प्रूव करना है, अगर उसने कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं किया तो जो प्रिजम्पशन है ना, प्रिजम्पशन क्या है सी के अंदर प्रिजम्पशन है कि भाई बड़ा डिफिकल्ट है कि भाई इस आर्टिकल से कितना नुकसान हो गया, जो गुम हो गया या चोरी हो गया, व्हाट्सएप। बी के अंदर क्या है, डी नहीं है, बी है, ठीक है ना। बी के अंदर क्या है कि कंपनसेशन मनी तो एडिक्वेट रिलीफ है ही नहीं, ये प्रिज्यूम करेंगे। लेकिन मान लो अगर सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रेरी प्रूव कर दिया तो ठीक है, कोर्ट अपनी प्रिजम्पशन छोड़ देगी। यानी ना ना ना, ये तो बात आप मत बोलिए कि कंपनसेशन मनी जो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, यस इट इज एडिक्वेट रिलीफ, कोर्ट इस बात पे आ जाएगी। सर ये तो एक तरह से बी और सी है सर, हाँ डिफेंस वाला लेगा। हाँ, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि ये प्रिजम्पशन किसके फेवर की है, हाँ ये प्लेंटिफ के फेवर। प्लेंटिफ की है सर, प्लेंटिफ की अगर किस तरह फायदा कोई सर, अगर वो मतलब एक तरह से काउंटिंग में नहीं आई सर, तो सर उसे मिलेगा नहीं। कॉमन सेंस लगा रवि, ये है वो सीमांतीरा। प्लेंटिफ केस करेगा या डिफेंडेंट केस करेगा? स्पेसिफिक रिलीफ में क्या मांगेगा, पैसे मांगेगा, यही सीमांतीरा मांगेगा। अगर वो ये मान ले कि भाई कंपनसेशन मनी इज एडिक्वेट रिलीफ है, तो किसका नुकसान है? तब सोचोगे, पूरी पिक्चर बनानी पड़ती है ना। मैं सीख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ना ये सीख रहा हूँ एआई की वीडियो बनाना, ठीक है ना। मैं बहुत मतलब आई एम सर्चिंग लाइक अ डॉग, एक किसी एक बंदे को जो मुझे ये सिखा दे, मैं इस तरीके की वीडियो बनाया करूंगा फिर, ठीक है ना, समझाने के लिए, ठीक है ना, कि एक आदमी हीरे की तरफ देख रहा है, उसकी मुझे राल गिर रही है फिर शायद अच्छे से पिक्चराइजेशन अच्छे से होगा, ठीक है ना। ऐसे होता ना, वो आंख आंख में जैसे कार्टून नहीं दिखाते थे, वो पैसे छप जाते थे, ठीक है ना। पैसे छप जाएंगे तो मतलब क्या है, कंपोजिशन मनी दिखाई दे रहा है उसको, ठीक है ना। लेकिन उसकी आंखें चमक रही हैं, आंखों के अंदर भी वो हीरा ही चमक रहा है, मुंह से राख गिर रही है, तो मतलब क्या है ना भाई, ये इसके लिए डेस्परेट है, अगर ये गुम हो गया इसके बदले में कुछ भी मिल जाए वो नहीं है, ठीक है ना। बट ये भी कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है, और जो अपोजिट पार्टी डिफेंडेड उसके ऊपर छोड़ दिया, अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रेरी प्रूव कर सकते। Your lordship, it is like another diamond, your lordship. This is not something like कोहिनूर। कोहिनूर आ रहा, हीरा आ रहा है देश में, इसमें फॉल हो रहा है वो, गलत तरीके से अंग्रेजों ने लिया है, ठीक है ना। लास्टली जो एम्परर थे, ठीक है ना, अपने महाराजा रणजीत सिंह के पास गया था, और उनके पोतर प्रपोत से, जब वो छोटी एज का था, जब अंग्रेज निकाल के ले गए थे हीरा, रॉन्गफुल लिया ना उसे, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब क्या करें, दुनिया के सबसे बड़े चोर है, जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ रहा हूँ भाई साहब, आतंक मचाया हुआ है अंग्रेजों ने। जो भी स्कूल बनता है उसका फिर ब्रिटिश स्कूल अलग हो जाता है उसका, मतलब हाहाकार मचा होता है ये पूरे, ये क्या कहूँ, मतलब दीज आर वेरी सोफेस्टिकेटेड चोर्स, ठीक है ना। जैसे कि भाई अगर चोरी करवानी है और अगर ब्रिटिश चोरी कर रहे तो बस वो चीज को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, वो सल्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। है ना, मर्डर्स आर एवरीवेयर, बट ब्रिटिश मर्डर्स इज वेरी वाओ, इसके हाथों पर कितना आदमी, है ना, इस तरीके से वो चीजें, मतलब और हिस्ट्री को भी इसी ऐसे ही मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक होगा ना। उन्होंने देखा कि अरे इंडियंस ने ब्योमकेश बख्शी को बना लिया, ये 2 रुपीज इंडियन ब्योमकेश बख्शी लिखेगा, हम अपने देश में जाएगा और शार्लॉक होम्स लिखेगा, ठीक है ना। एक सेकंड, हाँ जी, सही, क्या कर रहे थे हम, ये प्रिजम्पशन हो गई, डन। हाँ चलो जी, एक आधा एग्जांपल है, वो फटाफट से करा दो, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ जाए। चलो जी, ये लो, फैमिली आइडल है, वो लॉस, चोरी, जो भी तुम्हारी इच्छा, तुम क्या लगाना चाहते हो, ठीक है ना।
बट ध्यान रखना ये केस सिविल हो रहा है स्पेसिफिक इफेक्ट के अंदर, कभी एफआईआर के चक्कर में घूम रहे हो। मैं एफआईआर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिमिनल कंप्लेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाओगे या फिर सिंपल आप ये मानते हो भी कंपनसेशन इज मनी इज इनफ? सिंपल यस नो? Yes. यस 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 Yes, yes. यस। चल ठीक, हाउ? जल्दी बोलो। So compensation and money increase इनके sentiments को लेके तो मतलब जिस आइडल है यानी कोई मूर्त है। ठीक हो गया, चलो सही बात है। ये लो फैमिली पिक्चर है, सेम सवाल, यस नो? नो 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 नो, कोई भी पारिवारिक नहीं है, यस। दोबारा बनवा लेंगे। आदमी कहाँ चलाओगे? चलो ये लो, आजकल बच्चे जो डिजिटल हो गए, फैमिली पोर्ट्रेट, यस नो? यस मतलब चलेंगे यस, फैमिली पोर्ट्रेट टाइप का सर, अब की पीढ़ी की हो, एक सर पुराने तक के पता तो भी। सिंपल फैमिली पोर्ट्रेट, यही फैमिली है जो इधर है, सेम। यस सर। यस यस यस, ठीक है। अब क्यों बदल दिया भैया? अब क्यों बदल दिया? सर अगर ये आपने बताया पिक्चर में एक एक सर, ये पोर्ट्रेट की सर जो उनके दादा परदादाओं की थी सर, तो मतलब नहीं, भगवान आ जाते हैं कुछ भी देखो सर, वही राम वही जी देखो, को। वही है ये जो यहाँ पर जो फैमिली पिक्चर है ना, वही है। पिक्चर की जगह खिच खिच की जगह पोर्ट्रेट है। सर बता रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ। ठीक है ना? तो वो पुराने पूर्वज नहीं, उनका नहीं, ये हो सर। ना उनका नहीं, मैं कह रहा हूँ उनकी फोटो नहीं, पुराने जो भी है पूर्वज उनकी नहीं, एक फैमिली जो है ना वो वाली बस। अब उसमें तो हो जाएगा सर, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, अगर सिर्फ पुरानों की हो बाय चांस सर, हाँ हाँ, उसके अंदर में सर वो तो एंटीक बन गई ना, वो तो एंटीक बन गई, वो तो एंटीक बन गई। तो नहीं, बट अब वाली भी अगर फैमिली पोर्ट्रेट है, वो क्या पता किसी पर्टिकुलर उसने बनाई हो, आर्टिस्ट ने, या पर्टिकुलर उसने करा हो, या कोई बंदा जो पहले था वो प्रेजेंट ही ना हो, मतलब एक्चुअल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, सेंटीमेंट तो कैसे भी हो सकते हैं। देखो वो तो एंटीक हो गई ना, जो पुराने बंदे हैं वो तो हाँ सर। चली गई, एंटीक पिक्चर हो गई। अगर वो लेट से कैमरे वाली भी है, नेगेटिव पॉजिटिव जो फिल्म होती है उसके अकॉर्डिंग भी है, वो भी एंटीक होगी। पुरानी चित्रकारी पच्चीकारी जो भी है वो तो फिर अलग ही बात हो। डन हो गया? सिंपल आपकी फैमिली है, सिंपल आपकी जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर अलग अलग फैमिलीज हैं, ठीक है ना, उसका पोर्ट्रेट है। क्या लगता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराओगे या फिर पैसे ले लोगे? ये हो गया, देखो ये हो गया, ठीक है ना? सही, चलो एक सवाल बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, मैनिपुलेट कर रहा हूं क्योंकि आगे भी एक सेक्शन हम पढ़ेंगे कि किस किस कॉन्ट्रैक्ट की आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हो, ठीक है ना, उसके लिए। चलो ये जो फैमिली पोर्ट्रेट है, एफपी कर रहा हूं, ठीक है, ये एक बड़े ही फेमस पेंटर ने बनाया है। ठीक हो गया, चलो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डालोगे, यस या नहीं? या फिर सिंपल सूट मेंटेनेबल है या नहीं? नो। ठीक हो गया, ये आगे बढ़ा रहा हूं एक स्टेप ताकि आपका माइंड थोड़ा सा ओपन हो जाए। ठीक है, हर जगह पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट मेंटेनेबल नहीं है। ठीक हो गया, कहा नहीं है, अभी नहीं छेड़ेंगे, अभी इसी पॉइंट के ऊपर रहते हैं, ठीक है ना? चलो चलो
बनाओ जरा, ये मुझे बताना। ए जो है यूरोप जा रहा है, ठीक है ना, बना लो साथ साथ में, इंपॉर्टेंट है ये। और इस कारण से अपना सारा फर्नीचर एक्सेट्रा, चलो ओनली फर्नीचर करता हूं, फर्नीचर जो है बी के चार्ज में रखवा देता है, ठीक है। ठीक है, बी जो है बिना ए की अनुमति के, बिना ए की अथॉरिटी के, ठीक है जी, ये सारा फर्नीचर सी को बेच देता है। सी को भी पता है कि बी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, सी को पता है। ठीक है, सिंपल। मैं सवाल पूछ रहा हूं, जरा सोच समझ के, आपके सामने बस यही फैक्ट है, बस, और कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है ना। देन मैनिपुलेट ऑन योर ओन रिस्क। इमीडिएट पोजेशन का राइट किसके पास है? ए, बी, सी। सब सोचोगे, सब सोचेंगे आप, बी, बी दो, दो बी तीन, सी। आपका सी है क्या? सी। ए क्यों नहीं है? सर फिलहाल क्योंकि उसने अपना फर्नीचर बी को ऑथराइज कर रखा है कि तू मतलब उसके अंडर रखवा रखा है, ठीक है। तो इमीडिएट पोजीशन तो बी के पास आएगा। जैसे ड्राई क्लीन केस में था, उसने एक्स को किराए पे दे दिया था, तो इमीडिएट पोजीशन तो बी के पास जाना चाहिए था। मैं इस सारे एग्जाम्पल को, ठीक है ना, एक घर बोल दे रहा हूं, ठीक है, ठीक हो गया, चलो जी, ठीक है। बी के चार्ज में रखवा दिया घर उसने, उसकी देख रेख में छोड़ दिया, केयर पोर्शन में चार्ज दे दिया अपने घर का, ठीक है ना। चलो, सी, बी ने उठा के बेच ही दिया सी को। सी को भी पता है कि बी के पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। इमीडिएट पोजीशन किसके पास है? सेम सवाल, सेम सवाल, फिर यहाँ क्यों बदल गया? यहाँ क्यों बदल गया? समझ रहे हो? चलो, मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूँ। अब केस बताओ कौन डालेगा रिकवरी ऑफ पोजेशन का? पोजेशन ऑफ, इमीडिएट पोजेशन कर देता है, इमीडिएट मूवेबल प्रॉपर्टी। ए, बी, सी। ए, 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 ए। सी से वापस ले लिया उसने सामान। हाँ, जिससे भी लेना हो। रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन कौन मांगेगा? आपके मन में कोई है, बी है तो बी बोल दो, मेरे को तो बस पूछना है। मतलब ए वापस आ गया अपना सामान ले। ए वापस नहीं आया, कौन डालेगा? सी। सी। क्यों?
सी ने तो पैसे दे दिए ना उस सामान के। सेक्शन 8 से बताओगे मुझे एसआरए, आपके पर्सनल ओपिनियन की परवाह नहीं मुझे। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, स्पेसिफिक है ना, सेक्शन 8 में स्पेसिफिक है, डालो जरा किस में फॉल कर रहे हो। डी क्या है, डी क्या है? The possession of things claimed has been wrongfully transferred from the इनमें डल जाएगा। है ना, ए करेगा ना बी ना सी। देखो जरा बी को जरा फोल्ड करके देखो, पढ़ो ए बी सी डी भी कहां डलेगा, कहीं डल सकता है? ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान रखना, मूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक, ठीक है ना। कभी को घर सोच ले, मैंने तो सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है। पोजेशन एक्चुअल भी और कंस्ट्रक्टिव भी, किसी भी कोई भी हो सकता है। बी, बी किसी में डल सकता है, सी, ए, डी में। और चलो इस सवाल को और क्लियर करने के लिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं। ए जो है, ठीक है, वो किससे रिकवरी ऑफ पोजेशन मांगेगा, क्लेम करेगा? बी से या सी से? प्रॉपर उसका वो प्रॉपर्टी का वो सवाल नहीं है, ठीक है। किससे कर रहा है? बी, बी, बी आपने क्वेश्चन बी बताया, बी बता दिया, बी कोई रह तो नहीं है ना, बी, वाई बी, इसने तो बी को ही किया था। सी, बी बताओ, ए बी सी डी डालो, बताओ। हम्म, बी तो किसी ने बी के अगेंस्ट में तो कहीं पर भी नहीं हो सकता। सी फॉल हो रहा है, सी के अगेंस्ट में सूट डलेगा, बताओ ए बी सी डी कहां? डी क्या? ना ना, ए में हम्म, ए ए बोल रहा है कोई? ए में तो एजेंट और ट्रस्टी है ना। यस, देखो फैक्ट क्या है, सी को पता है कि बी के पास अथॉरिटी नहीं है, उसने फिर भी मूवेबल प्रॉपर्टी बेच दी, पता है उसको। सी को पता है, कहने का मतलब कि बी के पास तो टाइटल ही नहीं है, तो मुझे क्या बेचेगा वो, मेरी तरफ क्या ट्रांसफर होगा। तो सी ने एज ए ट्रस्टी ये प्रॉपर्टी, वो होल्ड कर ट्रस्ट एज ए ट्रस्टी प्रॉपर्टी होल्ड करी, ट्रस्ट में खरीदते बेचते नहीं है। इतनी जल्दी होती ना कि मैं जजमेंट सुना दूं अपनी। होल्ड करेगा ये, खरीदनी नहीं है, ही कैन नॉट बाय। सही, बेचने वाला सिर्फ उतना ही टाइटल बेच सकता है, उतना ही हक बेच सकता है जितना उसके पास है। उसके पास चार्ज था सिर्फ उसके ट्रस्ट पे प्रॉपर्टी, उसने तो ट्रस्ट ट्रांसफर करा है बस। आज से मैं ये ट्रस्ट सी को दे रहा हूं, ठीक है, सही, ठीक है ना। और प्रैक्टिकली सी एक मूर्ख आत्मा है। कैसे है मूर्ख आत्मा? उसको नंबर 1 पता है कि ये बी की तो है ही नहीं, फिर भी ठीक है ना। दूसरा, बी के पास छोटी नहीं है, फिर भी बोल रहा है नहीं नहीं तू पैसे ले ले ले, पकड़, ले ले पकड़, ये ले 1 लाख फालतू ले, और यही फर्नीचर दे, कोई बात नहीं,
खेत आपका, खेत में लगी हुई वो भी आपकी। जैसे तो ये यहाँ पे ट्रस्ट बिना पॉइंट करे ही बन जाएगा। हाँ, सी बिना पॉइंट ट्रस्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ वर्ड चार्ज लिखा है, ठीक है ना। ट्रस्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। उसके ट्रस्ट पे, उसके विश्वास पे प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके हाथ में रखा है, ठीक है ना, कि भाई तो उसको संभाल के रखे। उसके ट्रस्ट पे है, मालिक है क्या भी, ठीक है ना, मालिक नहीं है, लेकिन उसके ट्रस्ट पे प्रॉपर्टी हमने छोड़ दी, ठीक है। अगेन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो कर दिया उसने, ठीक है ना, बट ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी का नेचर कैसा है, ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, ये आगे ट्रस्ट ही ट्रांसफर होगा, आगे कुछ भी कर लो ट्रस्ट ही ट्रांसफर होगा, बिकेगी नहीं है। करेक्टर इस प्रॉपर्टी का ट्रस्ट हो चुका है, सिंपल। सी ने जानबूझ के अपना बहुत नुकसान कर लिया, कर ले भाई, इच्छा उसे हमने की, सिंपल, सही, दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे आ जाओ। कल भैया इसके ऊपर लगभग एक पेज की डिक्टेशन है, ठीक है ना, एक पेज की डिक्टेशन कंप्लीट करा दूंगा कल के कल में, ठीक है ना। घर पे जाओगे, एमसीक्यू उठाओगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ठीक है ना। ये 1816 का एक्ट था सारे का, वहां से मैं एग्जांपल लेके आया हूं, ठीक है। आपको एक बता भी चुका था, ठीक है ना, 1866 का निकालो, नहीं तो पाकिस्तान का एसआरए एक्ट, ठीक है ना। सिर्फ वो, सिर्फ एक्ट पढ़ना है, उसके अंदर जो इलस्ट्रेशन है सेक्शंस के अंदर, पहले मिलान करना अपने एसआरए के साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर इलस्ट्रेशन पढ़ लेना बस उसके। वो पूछते हैं डीजीएस में, इलस्ट्रेशन आएगा वहीं से, अगर डीजीएस का एग्जाम दोगे। हिमाचल प्रदेश में एक क्वेश्चन पक्का उस इलस्ट्रेशन का, ठीक है जी। एमपी में एक क्वेश्चन पक्का, ठीक है। हरियाणा में आ गया, आ गया, नहीं आया, नहीं आया सिस्टम वो। पंजाब का भी यही सिस्टम, ठीक है ना। राजस्थान में नहीं पूछते, ठीक, निकाल के उसको देख लेना, ठीक है ना। नेट के ऊपर, गूगल के ऊपर टाइप करना पाकिस्तानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक हो गया, निकल आएगा पीडीएफ उसकी, कर लेना, सिर्फ इलस्ट्रेशन पढ़ने, फालतू चीजें नहीं पढ़ना, पता नहीं क्या लिखा होगा उसमें, ठीक है ना। पाकिस्तानी, ठीक है ना, सही। सेक्शंस के अंदर कुछ कुछ चेंज नहीं किया, देखो 18वीं सदी का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट चल रहा है, हाँ उसका इंट्रोडक्शन चेंज कर चुके हैं, शरिया और पता नहीं क्या क्या डाल दिया उन्होंने, ठीक है। ये अगड़म बगड़म है, ये चमत्कारी मनुष्य है, ठीक है ना, सही।